Kindly have a look. आपका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा. Let's have a look. Okay. So the question is, the figure is given, and in the figure, point A is on the bisector of angle XYZ. If angle AX is 2 centimeter, then what is AZ? Now tell me, this point A is on the bisector, guys. So we have decided whenever the point will be in the bisector, so the sides will be same. The distance will be same from the side. That means आपका AX or AZ will be same. Yes or no, students? Second property we have studied now. Important points. In important points, we have studied the second point, right? What was the second point? Whenever a point is on the angle bisector, then it will be the same distance from the sides. So I will write the solution now. See, solution is what? First of all, point A lies on the bisector of XYZ. It is already given. Next point. A is equidistant from side of XYZ. Yes or no? This is the property already, right? ये तो प्रॉपर्टी है आपका. क्या था प्रॉपर्टी आपका? अगर ए आपका बाइसेक्टर में है, सो ए का जो डिस्टेंस रहेगा बाकी दो साइड से, दैट विल बी सेम. सो आई विल राइट AX is equals to AZ. Yes or no? This is the property, right? AX is equals to what? AZ. But what is AX, guys? आपका AX कितना होता है? AX is 2 centimeter. It is already given. It is already given, right? So I will write AZ is equals to also 2 because AX is 2 centimeter given na. So AX and AZ is already same. So if AX is 2 centimeter, then AZ will also be 2 centimeter. So kindly take the screenshot, guys, fast. Kindly take the screenshot fast of this part. Okay, a triangle is given PQR and the sides of the triangle are already given. So it is given that PQ is 10 centimeter, QR is 12 centimeter, PR is 8 centimeter. And we have to find out the greatest and smallest angle. We have to find out greatest and smallest angle. Okay. So first arrange the sides, which is greatest. Dekho. Solution. PQ is given 10 centimeter, QR is given 12 centimeter, and finally PR is given 8 centimeter. Now arrange the sides. कौन बड़ा है उसको पहले लिखो, फिर सेकंड कौन बड़ा है, फिर लास्ट कौन बड़ा है, लिखो उसको. See, QR is greater, right? QR is greater than PQ is greater than PR. Agree with me, students? Yes or no in the chat box? Fast. समझ में आया तक? Because already 12 is greater than 10, 10 is greater than 8, right? So kindly note it down. QR is greater than PQ and PQ is greater than PR. Okay. So if I told you whenever the sides are greater, their opposite angles are also greater. Now tell me, what is the opposite angle of QR? QR का opposite angle is what? Tell me fast. This is QR. Opposite angle is what? It is P. The angle P. Greater than. What is the opposite angle of PQ? What is the opposite angle of PQ? Opposite angle of PQ is angle R. Greater than. What is the opposite angle of PR? Yes, students. What is the opposite angle of PR? Yes, it is Q. So tell me, this is the sequence. What is the greatest angle? बता दो बहुत अच्छे से. Greatest angle होगा आपका एंगल P, क्योंकि वो है ग्रेट खली के जैसा बड़ा. Greatest angle will be angle P. Okay. Now what will be the smallest angle, guys? छोटा एंगल कौन है आपका? छोटू सा एंगल कौन है आपका? फटाफट बताओ. Yes, रे मिस्टीरियो का जैसा छोटू सा एंगल है आपका Q. So we will write smallest angle is equals to angle Q. Is equals to angle Q. नहीं? Students usually say is equal to Q. Not this is equal to. This is equal to. पता है ना आपको? But students घाय में बोल देते हैं, sir, greatest angle is equal to P and smallest angle is equal to Q. It is not is equal to. It is equals to. Right? तो इसको आपको फ्लो को समझना पड़ेगा, फ्लो को प्रॉपर तरीके से बोलना पड़ेगा. राइट? सो आई होप ये भी क्लियर हो गया आपका. कितना सिंपल है मैथमेटिक्स. खाली आप लोग बदनाम करते बेचारे को. In a triangle ABC, it is given that this D is the perpendicular bisector and this is 90 degree. So it is given AD is perpendicular to BC. It is given. What we have to prove? We have to prove that this entire ABC triangle is isosceles.
What we have to prove? Entire ABC triangle is isosceles. When the triangle will be isosceles, guys, हम लोग डिस्कस करें इसके बारे में. ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस होता कब है? जब उसको होना होता है. होने को कौन टाल सकता है? ऐसा है क्या? नहीं. ट्रायंगल आइसोसेलेस होता है उसके रूल से. उसका रूल क्या है? Whenever the two sides will be congruent, अगर उसका दो साइड्स इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, सो वी विल कॉल इट एज, ये क्या है? ये हमारा आइसोसेलेस भाई है. कौन सा ट्रायंगल है ये? आइसोसेलेस ट्रायंगल है. यस और नो स्टूडेंट्स? एग्री विथ मी और नॉट? कच्चा कच्चा पक्का पक्का? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. You might be thinking that शाहबाज सर आज एकदम हंस रहे नहीं है, एकदम सीरियस मोड में है, बिकॉज ऑफ योर अटेंडेंस. नहीं, बिकॉज ऑफ योर अटेंडेंस. बुरा लगा आपका अटेंडेंस देखकर. आज हम 150 तक क्रॉस करते थे, 145 क्रॉस करते थे. इट्स नाउ हाउ मच? 105, 106. सो काइंडली चेक इट गाइस. नहीं, अभी तो क्विज भूल ही जाओ आप लोग. एक साल तक तो क्विज ही भूल जाओ. 10वीं में सीख करेंगे हम लोग अभी सीधा. ओके, एक साल तक तो भूल ही जाओ. देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी इन बदलापुर. रियली? ओके, सो ये रियल है, ये रीजन है. मुझे लगा मेरा लेक्चर खराब हो गया है, शायद मैं अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूं आजकल. ऐसा तो नहीं है ना गाइस? अगर पॉसिबल. चलो सॉल्यूशन. नाउ इन ट्रायंगल एडीबी एंड ट्रायंगल एडीसी, हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया दो ट्रायंगल को. ट्रायंगल ले लिया एडीबी, ट्रायंगल ले लिया एडीसी. अब किसी को नहीं दिख रहा है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको ट्रायंगल दिख नहीं रहा है? देखो, ये फर्स्ट ट्रायंगल है, ये आपका फर्स्ट ट्रायंगल है, ये आपका सेकंड ट्रायंगल है. यस और नो स्टूडेंट्स? लेट्स स्टार्ट. In triangle ADB and triangle ADC, you might be aware, whenever I will write in triangle ABC and triangle ADC, we have to prove the congruency. हम ट्रायंगल को congruent prove करते, राइट? आपको पता होगा जब हम लोग इन लिखते तभी. इन ट्रायंगल जब भी लिखेगा आपको समझ में आ जाना है सर बात कर रहे हैं ट्रायंगल के congruency. चलो आगे बढ़ते. इन ट्रायंगल ADB कौन कौन congruent है गाइस? See here, BAD is congruent to CAD. Yes or no? Obviously this BAD and this CAD is congruent because AD is the bisector. Yes or no? AD अगर bisector होगा तो एंगल को खुपाच करके दो पार्ट में डिवाइड कर लेगा. Yes or no? Right? So first part is angle BAD is congruent to angle CAD. आगे बढ़ लो. Segment AD is congruent to segment AD. कैसा? Because it is the common side. AD is coming in first triangle also, AD is coming in second triangle also. So this we will called as, नहीं, थाली का बैंगन, राइट? ये दोनों थाली में बज रहा है. AD is in the first triangle also, AD is in the second triangle also. So we have got one angle and one side. Next one, oh, angle ADB is congruent to angle ADC. You can see here, देखो, angle ADB is also 90 degree. ये angle is also 90 degree. So this will also 90 degree. So both the angles are 90 degree. Reason will be what? Reason will be what? Yes, each measures 90 degree. आपका रीजन रहेगा 90 degree. Now tell me guys, these two triangles are congruent by which test? Line से आओ. First one is angle, then side, then angle. Oh. So triangle is congruent by which test? ASA test. Which test? ASA, because पहला angle आया, then side, then again angle. So we will write it as triangle ABD is congruent to triangle ADC by ASA test. By ASA test. और हमने क्या कसम खाए थे? याद करो, what we have done the promise. हमने ये कसम खाए थे whenever the two triangles are congruent, then हम अपनी मनमानी कर सकते हैं. Yes or no students? Practice set 3.2 याद करो. नहीं गाइस, मैं बार बार ये वर्ड्स क्यों यूज कर सकता हूँ, मनमानी ये करते हैं एंड ऑल, बिकॉज ये चीजें हमारे दिमाग में फिट रहती है. अगर हम लोग स्टेप को, टेक्स्ट बुक के स्टेप्स को पढ़ते हैं ना, तो माइट बी पॉसिबल स्टेप्स को हम भूल जाए. बट ये चीजें हमारी जो यूजुअली लैंग्वेज में हम यूज बात करते हैं वो हमारे दिमाग में फिट रहती है हमेशा के लिए, राइट? सो व्हेनेवर द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट वी विल डू आवर मनमानी, राइट? हमको क्या प्रूफ करना था? हमको प्रूफ करना था ट्रायंगल है आइसोसेलेस. ट्रायंगल आइसोसेलेस के लिए क्या चीज की जरूरत है? ए बी और ए सी का कॉन्ग्रुएंट होना जरूरी है. बट ट्रायंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो मैं डायरेक्टली क्या बोलूंगा? ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी. सी directly we will say segment AB is congruent to AC. Reason will be, I told ना, corresponding sides of congruent triangle. अगर एंगल रहेगा तो corresponding angles of congruent triangle. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो YouTube में जाओ, आप लोग 3.2 को देख लो.
in the YouTube channel. 3.2 exercise is there. So kindly check that, and again you can check this so that your doubts will be very much clear to you. So AB is congruent to AC, yes or no? By CSCT. अगर आपका sides है congruent, अगर आपका sides है congruent, so what you will do guys? अगर आपका sides congruent रहेगा तो triangle क्या हो जाएगा? Triangle हो जाएगा आपका isosceles. Because we know that if the two sides are congruent, then the triangle is isosceles triangle. Any doubt, any shanka in these steps, then let me know in the chat box. Fatafat, fast. Better you take the screenshot. What is given? It is given that angle ABC is, sorry, angle ABC basically, angle ABC is perpendicular to BC. नहीं, अगर हम ध्यान देंगे यहाँ पर मिस्टेक है इन दी क्वेश्चन. यहाँ पर बेसिकली दिया है AD is perpendicular to BC. Yes or no students? AD is perpendicular to BC दिया. Next part, AE is congruent to BD दिया लोग ने. ये जो AE है ना आपका AE, ये congruent है आपका BD को. ये दो चीज दिया है आपको. Okay, so AE is congruent to what? BD. Now what we have to prove? We have to prove this part. खाली दिमाग में रखो, हमको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ हमको करना है AD is congruent to B. देखो AD कहाँ पर है? ये आपका AD है और आपका B है. हमको ये congruent प्रूफ करना है guys. Now see, yeah, exactly. क्वेश्चन यहाँ पर wrong लिखा है. AD congruent to BC क्वेश्चन में. Okay, now we are starting guys. Focus. What we are doing first part. सबसे पहला क्या ले रहा हूँ? First we are taking ADB and BE. ध्यान दो. ADB ये ट्रायंगल. ADB मैं बना रहा हूँ. ADB ये ट्रायंगल ले रहा हूँ. Okay, so better I will draw here A, D and B. Next one is BA. तो BA किधर है आपका? ये BA. Got it till here? ये ट्रायंगल को देखो मैंने जो बनाया हुआ अभी, ध्यान दो अच्छे से. See guys. Okay, it is deleted. Okay, so ADB and BE. So as you can see here guys, अगर हम लेते हैं ADB और BE, ध्यान दो, देखो ADB और BE में EB भी 90 है, ADB भी 90 है. as you can see, फर्स्ट सी हियर गाइस, ये ट्रायंगल में हम दो बार ट्रायंगल्स ले रहे हैं, इसके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा ये, इसके लिए फिगर को ध्यान से देखो. पहला हम लोग ले रहे हैं ADB एंड ट्रायंगल BE है. आप लोग देख सकते हो, ये है आपका ADB ट्रायंगल, ये है आपका ADB ट्रायंगल और ये है आपका AEB ट्रायंगल. गॉट इट टिल हियर? तो मैं वापस बना देता हूं. ये था हमारा ADB ट्रायंगल, ADB, और ये था आपका AEB, ये था आपका AEB. ये दो ट्रायंगल ले रहा हूं. अभी ध्यान दो, AEB is also 90 डिग्री एंड ADB is also 90 डिग्री. तो ये मेरा पहला एंगल हो जाएगा. एक एंगल मिल गया मुझे. यस और नो? AEB एंड ADB is 90 डिग्री, ये मिल गया मुझे. और क्या कॉमन है इसमें? देखो यहाँ पर दिया है AE is equals to BD. It is already given. AE is equals to what? It is BD. It is already given. So one angle मुझे मिला और one side मुझे मिला. Yes or no students? One angle I got and one side I got. Got it? Now what is the next part? What will be the next part guys? Yes, you are right. Next part will be AB. दोनों में AB आ रहा है देखो. So AB is congruent to AB. Yes or no guys? Are you understanding or not? First we got one angle, second we got one side जो कि given था, third we got the 90 डिग्री वाला AB. अगर आप AB को देखोगे तो ध्यान से देखो गाइस, ये जो AB है ना, AB ये हाइपोटेन्यूस है. गेटिंग माय पॉइंट? देखो EB में भी AB हाइपोटेन्यूस आ रहा है, ADB में भी AB हाइपोटेन्यूस आ रहा है. सो इन दिस क्वेश्चन वी गॉट हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट. सो ट्रायंगल किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा? कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट रहेगा? फटाफट बताओ चैट बॉक्स में. यहाँ पर हाइपोटेन्यूस कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास. सो ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय व्हिच टेस्ट? फास्ट. यस एग्जैक्टली, हाइपोटेन्यूस साइड टेस्ट से. ना हम लोग आते हैं अभी सम में. देखो ADB is congruent to BE. चलो, एंगल ADB is congruent to एंगल BE. Why? Because it is 90 डिग्री. मैंने बताया आपको. नेक्स्ट वन, हाइपोटेन्यूस AB is congruent to हाइपोटेन्यूस BA. Yes or no? I told you, मैंने आपको डायग्राम में बता दिया. दोनों हाइपोटेन्यूस कैसे हैं? देखो दोनों में हाइपोटेन्यूस आए कॉन्ग्रुएंट.
दोनों में हाइपोटेन्यूज आ रहे हैं आपके कॉन्ग्रुएंट। देखो ये कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट वाला पार्ट, डी बी इक्वल टू ई है, तो गिवन है, देखो ना दिया है ना यहाँ पे, डी बी इक्वल टू ई है, ये तो गिवन दिया है आपको। सो टेल मी गाइस, दिस ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट बाय विच टेस्ट? वी हैव वन एंगल, वी हैव वन साइड, वी हैव वन साइड, एस से होगा ना, ये ट्रायंगल एस से होगा ना, यस और नो फास्ट, ट्रायंगल एस से होगा क्या? नो, इट विल बी हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, बिकॉज हमने पहले ही डिसाइड किया, नो एएसए से नहीं। क्या कर रहे हो गाइस, कुछ भी लिख रहे हो आप। हाइपोटेन्यूज अगर इक्वल रहेगा तो हाइपोटेन्यूज टेस्ट से होगा, सो वी विल राइट एडीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीईए बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे, यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। दोनों ट्रायंगल हो गया कॉन्ग्रुएंट बाय हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। अगर कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग क्या करते गाइस? यस, टेल मी इन द चैट बॉक्स। कॉन्ग्रुएंट होगा तो हम लोग क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू इन द कॉन्ग्रुएंट पार्ट? यस, वी विल डू मनमानी। हम लोग क्या करेंगे? मनमानी करेंगे। मनमानी में मैंने ले लिया एडी कॉन्ग्रुएंट टू बीडी बी। मैंने मनमानी में क्या ले लिया? ये जो एडी था ना आपका, वो कॉन्ग्रुएंट किसको है? बी है। रीजन क्या दोगे आप? ऑब्वियसली सीएससीटी लोगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, सो प्रूफ हो गया हमारा, यस और नो? यही तो प्रूफ करना था, राइट? इट इज ऑलरेडी प्रूव, बिंगो। इट इज इजी और नॉट? फर्स्ट वी हैव टू ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, देन फाइनली वी विल डू व्हाट? ट्रायंगल को प्रूफ करने के बाद क्या कर लोगे आप लोग? अपनी मनमानी करके उसको प्रूफ कर लोगे। So kindly take the screenshot of this part also, guys. First, and I am repeating, guys. See the first question. Triangle XYZ and triangle LMN is similar. So what you have decided? Angles are congruent. So angle X पहले वाला and angle L पहले वाला congruent. Angle Y second one, angle M second one congruent. Angle Z first third one, angle N third one, it is congruent. So angles तो हमारे हो गए. Now we are interested in what? We are interested in what? Yes, students, we are interested in sides. We are interested in sides, but we have decided sides are not congruent. Sides are not congruent. Ria, wrong. Ria, it is wrong. You have written wrong. Sides are in proportion. Sides are in proportion. So we will write first two sides xy ln. So I will write xy upon ln equals to second third yz and mn. Yz and mn. Yes or no, students? Now first one and third one. First one and third one क्या है? Let me know in the chat box. Last one, xz upon ln. Yes. Bingo. So we have done our first sum. Is it so simple, students? Yes or no? So angles are congruent and these are also congruent. Okay. So take the screenshot of this sum. देखो, और साइड्स के बाजू में हमको लिखना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बिकॉज अपॉन में डाल रहे हो ना आप, सो यू हैव टू राइट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आई होप यहां तक क्लियर है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, लेबल देम, show the corresponding angles by signs, show the length of the corresponding sides in the proportion. Now tell me guys, okay, मैं फास्ट जाओ, स्टूडेंट्स आर टेलिंग सर और फास्ट जाओ। गाइस इतना फास्ट काफी है हमारे लिए, मैं थोड़ा वीक हूं मैथमेटिक्स में, इसके लिए मैं स्लो जा रहा हूं। ओके ओके, हम आगे बढ़े। चलो, अब उन लोग बोल रहे कि दो फिगर बनाओ सिमिलर ट्रायंगल्स का। सो आई विल ड्रॉ टू ट्रायंगल्स। मैं बनाता हूं दो ट्रायंगल। ओके, दो ट्रायंगल बन गए। लेट अस अज्यूम एबीसी एंड दिस इज व्हाट? पीक्यूआर। एबीसी एंड व्हाट? पीक्यूआर। PQR. Okay. Now what they are telling? They are telling that आप लोग they are telling that आप लोग को एंगल्स को शो करना है। We know that A एंगल किसको इक्वल रहेगा गाइस? P को इक्वल रहेगा। सो मैं मार्क करता हूं ऐसे एक लाइन से, एक एंगल मार्क किया मैंने। Now we know that B and Q are also same. B and Q, इसको मार्क कैसे करेंगे? सेम का दो लाइन से। मतलब फिगर देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो एंगल ए और पी सेम है और एंगल बी और क्यू भी आपका सेम है। व्हाट अबाउट सी गाइस? सी और क्यू आर सेम है, राइट? सो आई विल राइट थ्री लाइंस, 1 2 3, 1 2 3,
बिंगो, वी हैव ड्रॉ द डायग्राम। हमने डायग्राम को बना दिया और एंगल्स को भी रिप्रेजेंट कर दिया। अब साइड्स बताओ मुझे, साइड्स कैसे होगे? साइड्स अगर आपको प्रोपोर्शन में करना है ना गाइस, सो आई विल टेल यू दिस स्टेप। मुझे मालूम है ये साइड इक्वल रहेगा इसको, राइट? ये साइड प्रोपोर्शन रहेगा इसको और ये साइड प्रोपोर्शन रहेगा इसको। यस और नो? वी नो दैट ए बी रहेगा पी क्यू को प्रोपोर्शन में, बीसी रहेगा क्यू आर को प्रोपोर्शन में, और आपका एसी रहेगा पी आर को प्रोपोर्शन में। अब साइड्स लिखोगे कैसा? सी द ट्रिक गाइस, सी द ट्रिक। अगर मैं यहां पर 1 लिख रहा हूं ये साइड को, ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा इसका डबल 2। ट्रिक को याद रखो, इस साइड को अगर मैं 1 लिखूंगा तो इसका डबल हो जाएगा ये साइड में। अगर मैं यहां पर लिखूंगा 2 तो उसका डबल यहां पर हो जाएगा 4। इफ आई एम राइटिंग हियर 3 तो उसका डबल क्या हो जाएगा यहां पर? 6। सो वी हैव डन विद दिस सम। समझे? अभी यहां पर देखो सम में आओ, देखो दिख रहा है यहां पर मैंने क्या किया, देखो अच्छे से। मैंने एबीसी लिया और पीक्यूआर लिया। वी हैव टू शो द एंगल ना, तो देखो ये एंगल ए और एंगल पी को सेम मार्किंग किया मैंने, एंगल बी को डॉट दिया तो एंगल क्यू को भी डॉट दिया मैंने। इट्स अप टू यू, मैंने पहले जो बताया वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और एंगल सी को मैंने दिया ऐसा सेम। गॉट इट टिल हियर? यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। डॉट मीन सेम एंगल्स, नथिंग एल्स। हम खाली सेम एंगल बता रहे हैं। तो क्या अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं पहले वाले बता दूं, हमने ये बनाए थे ना। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो पहले वाले बताता हूँ। एबीसी एंड पी क्यू आर हमने ऐसा बनाया था, पहले एंगल, दूसरे एंगल के लिए 2, दूसरे एंगल के लिए 2, तीसरे एंगल के लिए 3, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या बोला, अगर मैं इसको 1 ले रहा तो इसको क्या लूंगा 2। हियर अगर मैं 2 ले रहा तो यू विल टेक 4, हियर यू विल टेक 3 एंड यू विल टेक 6। नाउ वी नो दैट गाइस, हमारे साइड्स कैसे होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। तो हम चेक करते, देखो पहले देखते हैं हम लोग ए बी अपॉन पी क्यू देखते हैं। ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है? ए बी इज 1, पी क्यू इज 2, इट इज 1/2। यस और नो? ए बी अपॉन पी क्यू क्या आ रहा है? 1/2। नेक्स्ट वन, बी सी अपॉन क्यू आर करो, क्या आएगा वो? बी सी इज हाउ मच? 2, क्यू आर इज हाउ मच? 4। तो 2/4 मीन्स 2 1 2, 2 2 4। ओहो, ये भी 1/2 आ रहा है। गॉट इट? ये भी क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट, AC अपॉन PR, AC is 3 and PR is 6. इसको सॉल्व करो, व्हाट यू विल गेट? अगेन यू विल गेट 1/2, 3 1 and 3/2, राइट? मतलब AB upon PQ and BC upon QR and AC upon PR, they all the three are same 1/2. So I can write down AB upon PQ equals to BC upon QR equals to AC upon PR. सो फॉर ट्रायंगल सिमिलर रहने के लिए क्या चीज की जरूरत है? एंगल्स कॉन्ग्रेंट होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन होने चाहिए। मेरे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट हो गए और साइड्स भी प्रोपोर्शन हो गए। सो आई कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर का। आई होप ये पार्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया रहेगा। आई थिंक सो।